Hello student, greetings from Indore Public School. Hope you all are doing well and stay safe at your home with your family. In last lecture, we had completed till exercise 3.1 of chapter Understanding Quadrilaterals. In this lecture, we will continue from exercise 3.2. Exercise 3.2. Question 1. Find x in the following figure. Figures are given. Find the value of x in the following figure. First figure is A. This one given 125 degree. This one is also 125 degree. Find the value of x. You know 125 and x, all angles are in exterior of that triangle. That means exterior angle. So how can you solve? 125 degree plus 125 degree plus x is equals to 360. You know exterior angle sum property. For any n-sided polygon, sum of exterior angle is always equals to 360 degree. That is exterior angle sum or sum of exterior angle. 125 plus 125, 250 degree plus x is equals to 360 degree. X is equals to 360 degree minus 250 degree. X is equals to 110 degree. बहुत ही इजी है. सारे एंगल्स एक्सटीरियर में थे. एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लगाया क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है. 125 plus 125 we get 250 plus x. After this you have to simplify the equation. Plus 250 shifted from LHS to RHS, we get x equals to 360 minus 250 and we get x equals to 110. Now question 1 second part B. Here figure is given. This one is 90 degree. This one is 70 degree. This one is also 90 degree. And this one is x. This one is 60 degree. This figure is given. Okay. Find the value of x. You know, if this angle is 90 degree, this angle is also 90 degree by linear pair. So count from here or count from anywhere you can. 90 degree, either follow clockwise or anti-clockwise. इससे क्या होगा कि आपके कोई भी एंगल लेफ्ट नहीं होंगे. 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस अगेन 90 डिग्री प्लस x plus 70 degree is equals to 360 degree. Exterior angle sum. Exterior angle sum property. 90 plus 60, 150. 150 plus 90, 240. 240 plus 70,
310, right? 310 degree plus x is equals to 360 degree. Shift 310 degree from LHS to RHS. What we get? X equals to 360 degree minus 310 degree. Then x is equals to 50 degree. Then in this figure, value of x is 50 degree because all angles are in exterior. So you know sum of all exterior angle of n-sided polygon is always 360. Either that shape is pentagon, hexagon, octagon, whatever the shape is given, n-sided polygon, exterior angle sum is fixed, that is 360 degree. Question number 2. Find the measure of each exterior angle of a regular polygon of first question 9 side, second question 15 side. Find the measure of each exterior angle. आपको n साइडेड फिगर गिवन है, 9 साइड का n इक्वल्स टू 9 गिवन है, तो आपको each exterior angle of that regular polygon you have to find. n you know n is number of sides given. Number of sides 9 है given है फर्स्ट क्वेश्चन में. each exterior angle का फॉर्मूला मालूम है, we already discussed. each exterior angle is equals to 360 degree divided by n. This formula we already learned. कंडीशन क्या है? एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन अगर नहीं दिया रहता तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, और हमने आपसे डिस्कस भी किया था इन दिस क्लास वी ओनली लर्न अबाउट द रेगुलर पॉलीगन, और सारे फॉर्मूले मैंने रेगुलर पॉलीगन के ही लिखवाए थे. देन ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n is equals to 9, that is 40 degree. n-sided polygon, that means नॉनागन जिसका एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 40 डिग्री होगा. सेकंड क्वेश्चन और बी क्वेश्चन, दिस वन इज फर्स्ट. बी 15 sides, that means n equals to 15 given. This question you will solve by yourself as SW formula. You can apply the same method, same formula, only in place of 9 you can use 15, and 15 divide करेंगे you know 24 आएगा. same आएगा each exterior. Number 3. How many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree? You can see question from your book, my dear student. How many sides, कितने sides होंगे? Does a regular polygon have, कितने sides होंगे if the measures of an exterior angle is 24 degree? Each exterior angle given है. Now you know the concept. क्या गिवन है? गिवन दैट व्हाट इज गिवन? ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री. 24 डिग्री ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है. वैल्यू पूछा है हाउ मेनी साइड्स, एंड दैट मीन्स नंबर ऑफ साइड्स you have to find. What is the value of number of sides? फॉर्मूला सेम है, उसी फॉर्मूले का यूज करते हैं. ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n. ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू हमें मालूम है कितना है? 24 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n. इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है? 1 है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
अभी हमने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल सॉल्व किया है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स क्या लिखूंगा, 24 डिग्री इंटू n इज इक्वल टू 360 डिग्री इंटू 1। नाउ n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 डिग्री। यू नो यहां पर 24 डिग्री क्या है, इंटू में है, जब शिफ्ट होगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। करें 12 से, 12 2 जा 12 3 जा, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 2 से 15। और यहां पर बच्चे गलती क्या करते हैं, n इक्वल टू 15 डिग्री लगा देते हैं। बेटा डिग्री टू डिग्री कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू कभी भी डिग्री में नहीं आएगी। नंबर ऑफ साइड्स डिग्री में मेजर नहीं होता, काउंटिंग होता है। सो n इक्वल टू 15, दैट मीन्स n इक्वल टू 15 इज द नंबर ऑफ साइड्स हुज एक्सटीरियर एंगल इज 24। यही क्वेश्चन आपका सेकंड का बी भी बनेगा इसी तरीके से। जब यहां पर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आएगी, 24 डिग्री आएगी। तो इस थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, ध्यान से समझिएगा। ईच एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री गिवन था। हमें हाउ मेनी साइड्स ऑफ दैट पॉलीगन पूछा था, ऑफ रेगुलर पॉलीगन। n इज द नंबर ऑफ साइड्स हमें निकालना था। हमने इसी फॉर्मूले का यूज किया, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n। देखिए फॉर्मूला याद होने से कितनी जल्दी आसानी से निकल जाता है। और भी तरीके हैं इसे निकालने के। एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो फिर इंटीरियर एंगल निकालो, फिर इंटीरियर एंगल निकाल करके उससे n-2 इंटू 180 डिग्री से फिर डिवाइड करो, तो वहां से भी n की वैल्यू निकलेगी। बट यहां से इजी वे में निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड्स does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 degree? In previous question, each exterior angle is given. In this question, each interior angle is given. Don't worry. You know, given that क्या डेटा गिवन है, each interior angle is equals to 165 degree. Each interior angle is 165. How many sides does a regular polygon? Okay, fine. You know, exterior angle plus interior angle is equals to 180 degree. Linear pair, they form linear pair. Now exterior angle की वैल्यू यहां से निकालते हैं। exterior angle प्लस इंटीरियर एंगल की वैल्यू 165 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, दैट इज 50 डिग्री। प्रीवियस क्वेश्चन आ गया। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 15 डिग्री गिवन है। नाउ नंबर ऑफ साइड्स हमें निकालने हैं। नंबर ऑफ sides, you know the formula, 360 degree divided by each exterior angle. Each exterior angle 360 डिग्री को, क्योंकि किसी भी n साइडेड पॉलीगन का 360 डिग्री होता है सब, 360 को हम अगर each exterior angle से डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएगा। नाउ 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15 degree to 4, that is 24. Hence number of sides is equals to 24. वो पॉलीगन जिसका ईच इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है, उसका नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 24.
क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, इज इट पॉसिबल to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree given that दिया हुआ है each exterior angle is equals to 22 degree. each exterior angle given है 22 डिग्री। तो पूछा है कि इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन, ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन हो सकता है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री को चेक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोल सकते ना। नंबर ऑफ साइड्स हम फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। नाउ सी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 22 डिग्री, 2 से 11 2 से कैंसिल करेंगे। 360 डिवाइडेड बाय 2 180, 22 डिवाइडेड बाय 2 11, दैट इज 180 by 11 and that 11 is not divisor of 180, so our answer is no, not possible. Is it possible? Not possible because 22 degree is not a divisor of 360 डिग्री। 22 डिग्री जो है 360 डिग्री का डिवाइजर नहीं है, और हम कह सकते हैं 22 डिग्री इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 360 डिग्री, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है जिसका कि एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। बी पार्ट, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन? बाय That means it is related to first question. एक्सटीरियर एंगल जो 22 डिग्री दिया हुआ था, अब उसे हमें क्या मानना है? इंटीरियर एंगल। गिवन क्या दिया हुआ है? इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 22 डिग्री। फाइंड एक्सटीरियर एंगल। फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल is equals to इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 से अगर मैं इसे माइनस करूं तो क्या मिलेगा? 158 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल हमें मिल गया। नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। नाउ 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 158 डिग्री, सॉरी 79, 180 is not divisible by 79, so what is this? Not possible। अगर ये इंटीरियर एंगल भी हो जाए तो भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। Not possible because 360 degree is not divisible by 158 degree, or 158 degree is not a divisor of 360 degree, और 360 डिग्री इज नॉट डिविजिबल बाय 158 डिग्री, इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट ए। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन?
what is the minimum interior angle possible for a regular polygon and why? You know, smallest regular polygon. What is the name of smallest regular polygon? We already discussed. What is the name of smallest regular polygon? Equilateral triangle. Equilateral triangle. And you know, n is the number of sides. Number of sides कितने होंगे? 3 each. यहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे? Each exterior angle. Each exterior angle is equals to 360 degree divided by n, that is 360 degree divided by 3. What we get? 120. ये हमारा एक्सटीरियर एंगल आ गया. पूछा था कि इज इट पॉसिबल व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर. मिनिमम जो किसी भी एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन की बात करेंगे जिसका मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा वो फिक्स है कि वो 60 डिग्री होगा. कैसे? इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर. इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू प्लस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 120 हमने अभी फाइंड करी है 180 डिग्री. नाउ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज 60 डिग्री. दैट मीन्स मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री. क्योंकि हमने सबसे स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगन ले लिया, उसका इंटीरियर एंगल हमने एक्सटीरियर एंगल पहले फाइंड किया, फिर इंटीरियर एंगल फाइंड किया. तो मिनिमम जो इंटीरियर एंगल की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 60 डिग्री. आप इक्विलेटरल ट्रायंगल जानते हैं, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल. तो ये जो एंगल बनते हैं वो कितने डिग्री के बनते हैं? 60 डिग्री के बनते हैं. ये एंगल, ये साइड्स, ये सारे ऑल साइड्स इक्वल होते हैं इक्विलेटरल में. और आप जानते हो कि अगर ये बढ़ेगा, इंटीरियर एंगल इंक्रीज होगा तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा. जैसे कि हम रेगुलर 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन की बात करेंगे, स्क्वायर में क्या होगा? स्क्वायर में ईच इंटीरियर एंगल क्या हो जाते हैं? 90 डिग्री. उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 90 डिग्री. यहां पर एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 120. देखिए, अगर इंटीरियर एंगल यहां से यहां इंक्रीज किया 90 डिग्री तो इधर एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया. तो जैसे जैसे एक्सटीरियर एंगल डिक्रीज होगा वैसे वैसे इंटीरियर एंगल इंक्रीज होगा. तो मिनिमम पॉसिबल एंगल इंटीरियर का क्या होगा? 60 डिग्री. क्वेश्चन 6D पार्ट. व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन. तो जिसका इंटीरियर एंगल मिनिमम होगा उसी का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? मैक्सिमम. क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 डिग्री फिक्स है. तो अगर हम इंटीरियर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो एक्सटीरियर क्या होगा? डिक्रीज होगा. क्योंकि हमें दोनों का सम 180 डिग्री फिक्स रखना है. तो अभी हमने फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ऑफ 6A यू फाइंड इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन हमने अभी फाइंड कितना किया? 60 डिग्री. तो यहां से एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा. यू नो, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर. ये देखिए, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा. अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा.
if interior angle increase at the simultaneously exterior angle decrease. If exterior angle increase simultaneously interior angle decrease. बट यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, ये 60 डिग्री से कम नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 60 डिग्री प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल 120 degree. So condition is maximum exterior angle possible. Hence maximum exterior angle possible for a regular polygon, for a regular polygon is equals to 120 डिग्री. अब जितने भी रेगुलर पॉलीगन होंगे, दैट मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद स्क्वायर होगा, रेगुलर पेंटागन होगा, रेगुलर हेक्सागन होगा, उन सभी का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 180 से छोटा होगा, 180 से छोटा होगा. उसके अब इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे. एंड दिस एक्सरसाइज ऑल्सो कंप्लीटेड. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3. सो बिफोर stop this lecture, I want everyone please go through exercise 3.1 and 3.2. Basically I am talking about in exercise 3.1 question 6 and question 7. In this exercise 3.2 all 6 questions are important according to exam point of view, because हमने सारे क्वेश्चंस को फॉर्मूले का यूज करके किया, सॉल्व किया, और वो सारे फार्मूले हमने प्रीवियस लेक्चर में बता दिए थे. तो आपको फार्मूले लर्न करना है, अच्छे से उसको याद करने का एक ही तरीका है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें उस समय आप वैल्यू उस फार्मूले को जरूर लिखें. जैसे कि आप जानते हो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर से, हम लिख देते हैं. इसको एक लाइन लिखने से हमारा क्या होगा, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आपको लर्न होती जाएगी और आपको यूज करने का तरीका भी मालूम हो जाएगा. सो दैट्स एनफ. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3. स्टे सेफ एट योर होम. थैंक यू.